topic India and the World of Chapter 1 India Size and Location. So let's begin it. The Indian landmass has a central location between the East and West Asia. India is a southward extension of Asian continents. The Trans-Indian Ocean routes which connect the countries of Europe in the west and the countries of East Asia provide a strategic central location to India. The Deccan Peninsula protrudes into the Indian Ocean, helping India to establish close contact with West Asia, Africa and Europe from western coast and with Southeast and East Asia from the eastern coast. No other country has a long coastline on the Indian Ocean as India has, and indeed it is India's eminent position in the Indian Ocean which justifies the naming of an ocean after it. तो बच्चों, इंडियन मेनलैंड एशिया महाद्वीप के ईस्ट और वेस्ट के बीच स्थित है और इंडियन लैंडमास एशिया महाद्वीप का साउथवर्ड एक्सटेंशन या दक्षिणी विस्तार है। इंडियन ओशियन जो वेस्ट में यूरोपियन देशों तथा ईस्ट में एशियन देशों को मिलाता है, भारत को सेंट्रल लोकेशन प्रदान करता है। डेक्कन पेनिनसुला जो हिंद महासागर में फैला है, वेस्ट एशिया, अफ्रीका और यूरोप के देशों को वेस्ट कोस्ट से और साउथ ईस्ट और ईस्ट एशिया के देशों को ईस्ट कोस्ट से जोड़ता है। इंडियन ओशियन में किसी भी देश की कोस्टलाइन या तटीय सीमा भारत जैसी नहीं है और इसी महत्वपूर्ण स्थिति के कारण इस महासागर का नाम इंडिया के नाम पर रखा गया है। स्टूडेंट्स, एज वी नो दैट इंडियाज कॉन्टैक्ट विद द वर्ल्ड हैव कंटिन्यूड थ्रू द एजेस, बट हर रिलेशनशिप through the land routes are much older than her maritime contacts. The various passes across the mountain in the north have provided passes to ancient traveler while the ocean restricted such interaction for a long time. These routes have contributed in the exchange of idea and commodities since ancient times. The ideas of Upanishad and the Ramayana, the stories of Panchatantra, the Indian numerals and decimal system thus could reach many parts of the world. The spices, muslin and other merchandise were taken from India to different countries. On the other hand, the influence of Greek sculpture and the architectural style dome and minarets from West Asia can be seen in different parts of the country. तो बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं, भारत का विश्व के देशों के साथ संपर्क युगों से बहुत पुराना रहा है, परंतु समुद्री मार्गों की अपेक्षा लैंड रूट से इंडिया का संपर्क अधिक पुराना है। माउंटेन्स के उत्तर से होकर गुजरने वाले अलग अलग पासेस के द्वारा एंशिएंट ट्रैवलर भारत आए, जबकि समुद्री मार्गों की एक लंबे समय तक जानकारी नहीं थी। इन रास्तों से प्राचीन समय में विचारों और वस्तुओं का आदान प्रदान होता था। उपनिषदों के विचार, रामायण, पंचतंत्र की कहानियां, इंडियन न्यूमरल्स और डेसिमल सिस्टम आदि विश्व के विभिन्न भागों में इन्हीं पासेस का यूज करके पहुंच सके। मसाले, मलमल आदि व्यापार के अन्य सामान भारत से अलग अलग देशों में ले जाए जाते थे और इसके बदले में ग्रीक स्कल्पचर और वेस्ट एशिया के गुंबद और मीनार की आर्किटेक्चरल स्टाइल का प्रमाण हमारे देश में देखा जा सकता है। हाउ लॉन्गिट्यूडनल एंड लैटिट्यूडनल एक्सटेंट इफेक्ट्स द लोकल टाइम एंड ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट। द लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ mainland of India is about 30 degree, but how it is 30 degree? As we know that latitudinal extent of India's mainland is 8 degree 4 minute north to 37 degree 6 minute north,
and the difference between both of extent is approx 30 degree. By the same way, longitudinal extent of India's mainland is 68 degree 7 minute east to 97 degree 25 minutes east. By the same way, the difference between both of extent is approx 30 degree. But despite this fact, the east-west extent appears to be smaller than north-south extension of India's mainland. Students, do you know that from Gujarat to Arunachal Pradesh, there is a time lag 2 hours. It is because the longitudinal difference between both states' position, that is 68 degree 7 minute east to 97 degree 25 minute east is 30 degree. Since 1 degree is equal to 4 minute, therefore 30 degree longitude will equal to the 30 into 4 means 120 minute, and that is equal to 2 hours. This is because of difference longitudinal position of Gujarat and Arunachal Pradesh. There is a time difference of 2 hours between local time of Gujarat and Arunachal Pradesh. Hence, to avoid this situation, standard meridian of India 82 degree 30 minute passing through Mirzapur in UP is taken as standard time of whole country. तो बच्चों, आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि किस तरह से लॉन्गिट्यूडनल और लैटिट्यूडनल एक्सटेंट किसी देश के लोकल समय तथा दिन व रात की अवधि को प्रभावित करता है। जैसा कि हमें ज्ञात है कि भारत की मुख्य भूमि मतलब मेन लैंड ऑफ इंडिया का विस्तार लगभग 30 डिग्री है, लेकिन आखिर हम किस तरह से इसे मेजर करते हैं? तो जैसा कि हमें भारत की मैप में लोकेशन से दिख रहा है कि इंडिया के मेनलैंड का लैटिट्यूडनल विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ के बीच है तथा इन दोनों लैटिट्यूड्स का डिफरेंस लगभग 30 डिग्री है। इसी तरह से इंडिया के मेनलैंड का लॉन्गिट्यूडनल विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट के बीच है। इसी तरह से इन दोनों लॉन्गिट्यूड्स के बीच का अंतर लगभग 30 डिग्री है, लेकिन बावजूद इसके मेनलैंड के एक्सटेंट का ईस्ट से वेस्ट तक का विस्तार नॉर्थ से साउथ तक के विस्तार की तुलना में छोटा लगता है। तो बच्चों, क्या आपको पता है कि गुजरात से अरुणाचल प्रदेश को जाने में लोकल समय में लगभग 2 घंटे का अंतर पाया जाता है, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि दोनों राज्यों की पोजीशन, एक तरफ गुजरात जो 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड्स तथा अरुणाचल प्रदेश जो 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट में स्थित है, इन दोनों के लॉन्गिट्यूडनल विस्तार का अंतर लगभग 30 डिग्री है। अब क्योंकि 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड 4 मिनट के बराबर है, इसलिए 30 डिग्री लॉन्गिट्यूड 120 मिनट के मतलब 2 आवर के बराबर होगा। अतः गुजरात व अरुणाचल प्रदेश की अलग अलग लॉन्गिट्यूडनल पोजीशन होने के कारण ही दोनों राज्यों के लोकल समय में 2 आवर का अंतर पाया जाता है। इसीलिए ऐसी स्थिति ना उत्पन्न हो, इसे दूर करने के लिए इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन 82 डिग्री 30 मिनट जो यूपी के मिर्जापुर शहर से होकर गुजरता है, इसी के अनुसार पूरे देश का मानक समय निर्धारित किया गया है। द लैटिट्यूडनल एक्सटेंट ऑल्सो इन्फ्लुएंस ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट as we move from south to north. For example, duration of day and night equal to the same in Kanyakumari, which is southernmost tip of India. While as we move northward, duration of day and night begin vary, and there in winter, day will be shorter than night, while in summer,
day will be greater than night. Students, did you know that southernmost tip of India called the Indira Point got submerged under the sea in the tsunami struck the country in December 2004. लैटिट्यूडनल विस्तार के कारण ही जैसे जैसे हम साउथ से नॉर्थ की ओर जाते हैं तो दिन और रात की अवधि में भी परिवर्तन पाया जाता है। उदाहरण के लिए दिन और रात की अवधि कन्याकुमारी, जो भारत के साउथ का उच्चतम बिंदु है, यहाँ दिन व रात लगभग बराबर होती है। लेकिन जैसे जैसे हम नॉर्थ की तरफ जाते हैं यहाँ दिन और रात की अवधि में अंतर पाया जाता है। जाड़ों के मौसम में रात बड़ी तथा दिन छोटे होते हैं, जबकि गर्मियों के दिनों में दिन बड़े तथा रात छोटी होती है। तो बच्चों, क्या आपको पता है कि भारत के दक्षिण का उच्चतम बिंदु, जिसे इंदिरा पॉइंट कहते हैं, ये दिसंबर 2004 में आई सुनामी के कारण जलमग्न हो गया था।